Okay. Sir, Thank sorry you. for inconvenience. No problem. No problem. Good afternoon, everybody, to the third IYCF BPNI clinics, along with UNICEF. We all know that UNICEF is our now knowledge partner, and they have agreed to give us the technical as well as the Zoom support. So we are very, very thankful to Raji ma'am for having agreed on this venture. And we definitely want to take knowledge to each and every one. And these series would be very helpful in upgrading as well as in knowing what is the latest, plus having an open forum for discussions. We would be having didactic lectures, we would be having panel discussions, case presentations, which will really help to hone the skills of each and every one right at the grassroots level also. I warmly welcome Mrs. Rajlakshmi Nair, who is a state nutrition specialist at UNICEF Maharashtra. I also welcome Vyoma Dalal, who is the nutrition officer. And I saw that in the audience we have Dr. Saurabh Bhattacharya, who is the nutrition officer from Orissa. And to each and every Nutrition delegate, specialist. She's the yeah, nutrition specialist there. nutrition specialist, and to each and every delegate who has joined in, seniors like Dr. Manglavani, Dr. Kesavlu, Dr. Raghunath, and everybody who has joined in. Thank you for believing in BPNI's lecture series and these upgrading this knowledge and joining us. Or I would like to introduce Prashant, though he is known to each and every person, but still a formal introduction to who Prashant is. So Prashant is not only, Sushma Madam, can we first start with Raji Madam, who also would like, Raji Madam would yes, like to say a very few quick, words? Uh, yes, very a few quickly, words, can I just because yeah. introduce you? Okay, fine. Okay, One okay, second. okay. So Prashant is not only the heart, but also the soul and the brainchild of BPNI Maharashtra. And he is a practicing pediatrician for the last 30 years, with being a strong advocate to the breastfeeding and for training. He's the mother support and training coordinator for BPNI Maharashtra. He's the co-coordinator for the mother support working group at WABA. So he has a lot of international know-how, as well as he is famous in the circles of whether it's WABA or ILCA. And he has coordinated training for over 60,000 in 7 states of India. He is responsible for, of course, our breast scroll famous video and the Shishu Poshan app, as well as starting the website of BPNI. Warm welcome, Prashant, and over to you uh, to please introduce, Mrs. Raj Lakshmi Nair. There is some whiteboard which has come. Is it a normal occurrence, or is it because you have to cut it off? Okay, fine. This is the third series in the lecture, and we are happy that UNICEF has joined us. Of course, UNICEF, we cannot say it's a new partner. UNICEF has been partnering with us for last almost 35 years, when Felicity Savage was arranging workshops for the pediatricians and obstetricians from all over India. And since then, the UNICEF partnership has started. I think Raji Madam joined in 96, 97, am I right? Yeah. Yeah. So from that time, she has seen the BPNM Maharashtra grow from a small tree to a now, which is, I feel, with all of you joining in, it's really become a Vatavruksha, what we call in the local language, with so many people under the umbrella of BPNM Maharashtra. So she has seen Malishwari Moshi training. She was facilitated for that, and then trainings all over the state of Maharashtra, as well as Bracewell video, which was the the main person who sent it across the world, with UNICEF sponsoring the couriering it to all the universities which had demanded it, and of course the subsequent trainings. She has been in the UNICEF office without transfer for last 20, 30 years. So that goes to show a metal that how important work she has been doing in the field.
and she has been always been supportive. So we have been in touch. So it's not the first time that UNICEF cooperated with us. But yes, as far as this series is concerned, we were very excited to have this series. And UNICEF has joined in as knowledge partner, as Sushma Madam said. And we are happy, very happy to have you, Raji Madam, as Vyomas, of course, has been very instrumental in getting the flyers done and arranging this particular meet. So, Raji Madam, can you just speak a few words on this occasion? Thank you so much, Dr. Malik and Prashant, Dr. Vani, and all those people who are here, whom I have been associated, and it's been a privilege to be associated with all of you to take the most beautiful agenda, which is promotion of infant and young child feeding. And I think for UNICEF, it's been a core mandate, and we are committed to take this agenda forward because we still have in Maharashtra only 52% of the children being initiated into breastfeeding. So we still have a long way to go, and we need to understand why we need to push it further when we look at the larger change that is happening within the state because of the climate impact, how it is impacting mothers and children. And then we are also seeing the whole issue of NCD. So breastfeeding becomes a very crucial agenda, which everybody thinks, it need not be pushed. But it needs to be pushed more even now in the current situation. And that is a need of an hour. And today I just had a meeting with Assistant Director Child Health, Dr. Jagtap. I'm sitting in bureau and he said, hey, madam, whatever you do, IYCF has to be pushed in a big way. And that is something we have to do more. So which is very interesting that it's coming from a policy maker that we still have a long way to go. Having said that, and Prashant says that, yes, we have worked together, so we still have an unfinished agenda. And this approach, which has been taken by Maharashtra BPNI, is a very good platform to bring people, experts from different spaces coming together and taking the right kind of message and information to those who need the most. And I think this is something, and that's where when Prashant was discussing, I felt nothing better than joining hands to take it forward. So I think it's committed and we both have the same agenda. So we have tried to come together to take it forward. So thank you so much, Dr. Malik, Prashant, Dr. Mani, and entire team here. And look forward to more such series for the rest of the year. So thank you so Thank much. you. Thank you, Raji. That was very What kind of Raji you. Madam say very crucial, though most of the times we'll be discussing theory in this particular platform. Ultimately, breastfeeding gets only a lip service. That is what Dr. Kumta used to say. When it comes to implementation, whatever your theory knowledge, unless you use it in the field, so we'll be taking few more sessions where we'll be talking about how we are actually going to implement with BPNI policies and everything. Before I start my lecture, my job is today dual. I am also the host, I am also the guest. The three things I would like to be very clear about. That first is the disclaimer that we have for all these particular meetings. Speakers may have their own thought processes and own ideas, and they are free to present those ideas with which everybody may not agree. But most of the things they would say will be factual based on evidence. So that is one thing. So there's one disclaimer we would like to say. Secondly, we would like to say that all these our meetings are ethical. We are strictly following the IMS code and telling the speakers that IMS code, etc. In fact, we won't be inviting speakers who are not following the IMS code and act also. So that not just that BPNI Maharashtra does not believe in any conflict of interest. So no pump companies, no breastfeeding accessory companies, and no drug companies which have no interest in something. Everybody has some conflict of interest. Everybody wants to sell something, and we are not into that. No oil, no baby soaps, and no powders. So we want to make our background very clear on that particular aspect. The last point I would like to mention कि आज जो आए हैं ये वर्कशॉप है, कुछ लोग बहुत एजुकेटेड है, मेडिकल बैकग्राउंड से है, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी है जो ग्रास रूट से है. और मेरे पास कई बार फोन आए कि आप अंग्रेजी में बात तो कीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में हिंदी में मराठी में भी बात की. तो मराठी तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हिंदी में जरूर बात करूंगा, क्योंकि जो नॉन मेडिकल लाइन वाले हैं, जो ग्रास रूट में से है, उनमें उनका भी हक बनता है कि वो जाने कि एडवांसेस क्या चलता है, क्योंकि उसमें से क्या वो लेते हैं और फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं. तो
Voice is really cracking. Good. Uh, Not able to Okay, fine. I put my other internet and hotspot also. Am I audible now? Now you are audible. Before this, we couldn't hear you. And before you start, Prashant, just one very small message for Shalini or whoever is the host. Can you allow? There are lots of messages in the groups that participants are waiting to come in. In order to help you, I'm happy to be a co-host. So can you make Sushma Madam co-host? And there are many participants who are saying they can't join in. Okay, ma'am. Shalini, Okay, ma'am. thank you, dear. So can I start, Sushma Madam? Yes, yes, please, please. Okay, fine. So exactly 3:30 right now. So around 3:20. ओके, सो आज के लेक्चर का टॉपिक है मिलेटोनिन, मार्वल एंड ब्रेस्ट फीडिंग। क्या क्या किमया मिलेटोनिन करता है, ये सब हम लोग देखेंगे। Please put in the slide mode. ओके, फाइन। इज इट इन स्लाइड मोड नाउ? आर यू एबल टू हियर? Yes, yes, yes. Okay. So this is the photograph of Mata Parvati breastfeeding young Ganesha, and I like this photograph very much. And this tells us कि अपने traditions में breastfeeding कितना अंदर तक घुसा हुआ है, कि देवताओं भी अपने बच्चों को ब्रेस्टफीडिंग ही करते थे। ये बहुत अच्छी बात है, ये फोटोग्राफ हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अभी आज के मिलेटोनिन के सेशन का प्लान ये है कि पहले हम लोग बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे, उसके बाद कनेक्शन क्या है ब्रेस्ट फीडिंग के साथ। तो इट स्टार्ट्स विद प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी में मिलेटोनिन का स्टेटस क्या रहता है, फिर डिलीवरी के बाद क्या रहता है, और स्पेशल सिचुएशंस कुछ है जैसे ब्रेस्ट मिल्क बैंकिंग है, सेंसियू है, यहाँ पे क्या हो रहा है, और अल्टीमेटली इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे बच्चों को मदद करने के लिए, उनका फायदा करने के लिए। तो ये हम लोग लास्ट टॉपिक में देखेंगे। मिलेटोनिन क्या है? मिलेटोनिन एक हार्मोन है जो अपना सर्कैडियन रिदम रेगुलेट करता है, और सर्कैडियन रिदम क्या है मैं बताऊंगा, और क्रोनो न्यूट्रिशन के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले सर्कैडियन रिदम की बात करते हैं। अभी इंडिया में 3:30 बजे हुए हैं दोपहर के। आपको मालूम है यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को वगैरह ऐसे में कितने बजे हुए? वहां रात के 3:30 बजे हुए। यहाँ का XYZ पर्सन अगर यहाँ अभी फ्लाइट में बैठ जाता है, तो उसका दिमाग ओरिएंटेड है दोपहर, यहाँ दोपहर हुई है 3:30 बजे। जब भी यूएसए पहुंचेगा 16, 18, 20 घंटे के बाद, तो वहां का टाइम बराबर उल्टा रहेगा, लेकिन उसका ब्रेन अभी भी इंडियन टाइम फॉलो कर रहा है। तो जब भी ये XYZ को नींद आएगी, उसको लगेगी अभी रात हो गई है, एक्चुअली वहां सुबह हुई रहेगी। और जब भी उसको लगेगा सुबह है तो रात होती रहेगी, इसको हम लोग जेट लैग बोलते हैं। तो नींद आती रहती है दिन में, रात को जागना पड़ता है। एंड नॉट ओनली जस्ट स्लीप, बॉयल हैबिट्स है, हंगर है, फीलिंग है एक सुबह का शाम का, ये भी वो इंडिया से कैरी करके गया जो जाने को टाइम लगेगा। और ये सब जो हार्मोन कंट्रोल करता है, हार्मोन का मतलब ऐसे ग्लैंड्स जिनका सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में होता है, उसको हार्मोन बोला जाता है। तो मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो ये सर्कैडियन रहता है ना, वॉच जैसा रिदम 24 आवर का, ये रेगुलेट करता है। एंड क्रोनो न्यूट्रिशन में बाद में समझाऊंगा। तो कहाँ पे ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है? ये पीनियल ग्लैंड पे प्रोड्यूस होता है। ट्रिप्टोफैन करके अमीनो एसिड होता है, उससे प्रोड्यूस होता है। अभी पीनियल ग्लैंड, उसको पीनियल ग्लैंड क्यों बोला जाता है? वो जो दिखती है वो पाइन का जो कोन रहता है ना, वो पाइन के कोन जैसी दिखती है। तो एक्चुअली इट इज पिन ई हल, सो पीनियल अनु ग्लैंड। हेलो, मेरे लिए भी। हेलो, प्लीज आपके माइक्स म्यूट पे रखिए। ये ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से बना जाता है। सो इंटरेस्टिंग रहेगा अगर माँ को हम लोग ट्रिप्टोफैन बेस्ड फूड दे दे तो क्या फर्क पड़ेगा उसके मिलेटोनिन में। बोथ, मुझे भी ये पता नहीं था कि ये पीनियल ग्लैंड में से नॉर्मली सभी हार्मोन्स ब्लड में सीक्रेट होते हैं, बट ये पर्टिकुलर हार्मोन है, ये CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन के आसपास और बीच में जो पानी रहता है अंदर, उसमें भी सीक्रेट होता है। तो ब्रेन के ऊपर उसका ज्यादा असर होता है। ऑफ कोर्स ब्लड में से वापस वो ब्रेन में भी आ जाता है।
ऑफ कोर्स डे स्लीप हार्मोन होने के कारण उसकी डे नाइट साइकिल होती है। डे नाइट साइकिल क्या होती है, दिन में एकदम लेवल कम रहेगी, जैसे रात पड़ने को आ जाएगी थोड़ा अंधेरे का फीलिंग आएगा, इसकी लेवल बढ़ने को शुरुआत हो जाती है, और वेल पास्ट मिडनाइट वो सबसे पीक में रहती है, और उसके बाद वो कम होने को शुरुआत होती है और हम जाग जाते हैं। इंडियन फिलोसफी में ब्रह्म मुहूर्त जो कहा गया है, क्या वो ये मेलाटोनिन के हिसाब से ही किया गया है? In fact, I'm very proud to say that Ayurveda was the only medical science which considers आप क्या खाते हो, कितना खाते हो, इसके साथ साथ कभी खाते हो, इसको भी महत्व है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आप सेट ही नहीं कर सकते जब तक बच्चा टाइम पे उठता नहीं है और टाइम पे उसका ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं जाता है, तब तक उसका ग्रोथ अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लेट उठने वालों का जो आजकल फैशन है, ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज हमें ध्यान में रखनी है, क्या कितना खाते हैं, इसके साथ साथ कभी खाते हो, कभी उठते हो, तुम्हारे हैबिट्स, कितना डिसिप्लिन हमारा इंडियन लाइफ था, जल्दी उठो जल्दी सो जाओ और टाइम में सब करो, एकदम डिसिप्लिन, भूख लगना वगैरह, ये सब क्रोनो न्यूट्रिशन इसकी बात करता है। फॉलो द डे नाइट्स क्रिटिकल फॉर स्लीप वेक पैटर्न। अलग अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये सिर्फ बॉवेल हैबिट्स या हंगर की बात नहीं है, पूरे बॉडी के जो हार्मोनल साइकिल है वो भी अफेक्ट होती है। इनफैक्ट मदर्स में जो पीरियड्स का जो क्रोनोलॉजी है, जो साइकिल है, ये भी मेलाटोनिन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें देता है। इसके साथ साथ कई सारे फंक्शंस मेलाटोनिन कर लेता है जो हम लोग देखेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा पिक्चर है, क्लीवलैंड क्लिनिक से फ्री इमेज उधर से लिया हुआ है। अभी आप सोचेंगे ये क्या है, जो मेडिकल कॉल है उनको मालूम पड़ता रहेगा, और जस्ट टू रिकैपिचुलेट, अगर हम लोग किसी की तरफ देख रहे हैं, अभी फॉर्म मेरा पॉइंटर दिखता है कि नहीं, एग्जैक्टली कट सेक्शन ब्रेन का लिया हुआ है वर्टिकल में, नाक से लेके पीछे तक, तो ये नाक का बोन है, ये जॉ है, तो ये इमेजिन कर से एग्जैक्ट सेंटर में आप ये देख रहे हैं हाइपोथैलेमस है, जिसको बोला जाता है एंडोक्राइन ऑर्गन्स का राजा बोला जाता है। तो ये हाइपोथैलेमस है, ये ऊपर थैलेमस है, एट ये पीनियल ग्लैंड है, देखो फ्यू एक जिमते 8-10 मिलीमीटर की रहेगी, जो पाइन की कोन जैसे दिखती है, तो ये पीनियल ग्लैंड बोला जाता है। और ये पीनियल ग्लैंड का महत्व इंडियन फिलोसफी में बहुत है। अगर आपको कुंडलिनी जागृति का मालूम है, देर आर 7 चक्रास, तो द 6th चक्र विच आज्ञा चक्र इज द सेंटर ऑफ आज्ञा चक्र इज सपोज टू बी पीनियल ग्लैंड। इसलिए आप जब ये गंध लगाते हो, पीनियल ग्लैंड अप्रोक्सीमेटली एट द सेम लेवल, तो गंध के साथ आप हमेशा आज्ञा चक्र को स्टिम्युलेट करते रहते हो। तो ये भी एक इंडियन फिलोसफी में बना हुआ है कि पीनियल ग्लैंड सिटिंग एट द बैक ऑफ द ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिटेशन एंड कुंडलिनी जागृति की लास्ट स्टेप में, बाद में तो अना ऊपर का सहस्त्र कमल चक्र हो जाता है, तो उसमें भी यहाँ का मतलब से वी डोंट नो व्हाट कोरिलेशन इट हैज गॉट विथ योर डेली साइकिल। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इसका भी हमारे यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी देर इज मास्टर क्लॉक रहता है, हम लोग उठते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमें टाइम कैसे मालूम रहता है, कैसे बॉडी क्लॉक जैसे काम करती है 24 आवर्स में, तो उसका जो राजा है वो यहाँ पे अभी पिनियल बॉडी, यहाँ पे जो ब्लू में पीछे दिखाई दी गई, आप देखा मार्किंग है, और उसके आगे हाइपोथैलेमस का अगले पार्ट में एक सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस यहाँ पे दिया है ब्लू में जो है वो, और ये ये राजा है, ये क्लॉक है, यहाँ पे जो सभी सेल्स है ये बॉडी को जागृति देते हैं साइक्लिकली कि अभी 4 बजे 5 बजे 6 बजे, जैसे अपना हार्ट बीट कंटिन्यूअसली होते रहता है, साइनस रिदम, जो साइनस नोड से रिदम निकलता है, वैसे यहाँ से भी रिदम ऑसिलेटर्स रहते हैं यहाँ पे, और वो ऑसिलेटर हर एक सेल में रहता है। तो ये एक बड़ा काम करता है, और सबसे बड़ा स्टिम्युलस है मिलेटोनिन के लिए वो है लाइट। लाइट ज्यादा रहेगा तो मेलाटोनिन कम आएगा, लाइट का कम रहेगा तो मेलाटोनिन ज्यादा आएगा। इसलिए आग की तरफ से जो नर्व्स आते हैं, जिसको ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं, वो यहाँ पे क्रॉस ओवर होते हैं। और देखो ये रेड जो आप देख रहे हैं, ये ऑप्टिक कायास्मा है, जो उसके ऊपर ही ये सुप्रा कायास्मेटिक न्यूक्लियस है, तो डायरेक्टली उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बाहर कितना लाइट है, और यहाँ से पूरा हॉर्मोन्स जो है हाइपोथैलेमस का, उसके ऊपर उसका इफेक्ट हो जाता है। तो अभी सर्केडियन रिदम का थोड़ा फिजियोलॉजी हम लोग देखते हैं। मैंने आपको बोला मास्टर क्लॉक रहता है जो सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस से रहता है, उससे सेंट्रल रिदम जनरेशन होता है 24 आवर्स का, एंड दैट इज हाउ सर्केडियन क्लॉक इज सेट। वो कैसे सेट होता है, तो देर आर सेंट्रल ऑसिलेटर्स एंड पेरिफेरल ऑसिलेटर्स, और ये कंट्रोल करने के लिए जो जीन्स रहते हैं उनको सर्कैडियन जीन्स बोलते हैं, वो हाइपोथैलेमस में भी रहते हैं और पेरिफेरल सेल्स में भी रहते हैं। तो ऊपर का जो राजा रहता है, उसके जो सैनिक रहते हैं पेरिफेरल, उनको स्टिमुलेट करता है, और वहां से वो हर एक सेल का मेटाबॉलिज्म, हर एक सेल का टिश्यू, सुबह में अपने अलग अलग ऑर्गन्स अलग काम करते हैं, दोपहर को अपने अपने अलग अलग हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म अलग काम करता है, सुबह में जितनी भूख लगती है उतनी रात को नहीं लगती है। तो ये सब जो कंट्रोल है ये ऑसिलेटर्स के थ्रू आ जाता है, और उसको जो बाहर के स्टिम्युला है जिसके हिसाब से ये रिदम सेट होता है, उसको जाइट गेबर्स बोलते हैं।
Zeitgeber यानी क्या? तो Zeitgeber फॉर एग्जाम्पल लाइट इज द बिगेस्ट Zeitgeber। ऐसे कई सारे Zeitgeber है। जैसे अपने को भूख लगी, अपने अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं हाँ भूख लगी, इसका मतलब इतना हुआ रहेगा, मुझे अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, इसमें सुबह हुई रहेगी। तो इसको Zeitgebers बोलते हैं, जो एक्सटर्नल स्टिम्युला है, जो एक क्लॉक को स्टिमुलेट करते हैं। वो जीन एक्सप्रेशन स्टिमुलेट करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन स्टिमुलेट करते हैं, ट्रांसलेशन स्टिमुलेट करते हैं, और अल्टीमेटली वापस हाइपोथैलेमस को फीडबैक मिला जाता है। ये बहुत बड़ा आगे साइंस है, अब इतना टाइम नहीं है लेक्चर में, हमें खत्म करना है 1 घंटे में। प्रैक्टिकली क्या है, सो क्रोनो न्यूट्रिशन क्या है? So I feel that in IYCF, everybody has to inculcate and incorporate chrononutrition if you want to achieve good growth. So science of how food, metabolism, meal timing और body clock, ये सब कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, उसको क्रोनो न्यूट्रिशन बोलते हैं। और सर्कैडियन रिदम जो है, ये बॉडी के फिजियोलॉजी, डाइजेशन, हंगर, मेटाबॉलिज्म सब Chrononutrition. सुनाई दे रहा है। Yes, Chrononutrition. yes. Yes, तो sir. कोई, Yes, sir. Yes. तो माइक बंद रखिए, किसी का माइक खुला हुआ है प्लीज, रोशनी का मैंने अभी बंद कर दिया है। इंक्लूडिंग डाइजेशन, हंगर एंड मेटाबॉलिज्म। There is something word called circadian entrainment. डोंट वरी, आप लिखिए मत, आपको ये प्रेजेंटेशन में भेजने वाला हो, बिकॉज वी बिलीव दैट नॉलेज हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फ्रीली मूव। सो प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग इंटरनल क्लॉक विथ एक्सटर्नल रिदमिक टाइम क्यूज और Zeitgebers। फॉर एग्जाम्पल, मदर घर में है, उसको मालूम है मेरा एक बच्चा 5 बजे आता है, एक बच्चा 6 बजे कॉलेज में से आता है, तो जिससे बेल बजती है उसको मालूम है अभी 4 बजे, एंड दैट ऑल्सो एक्ट्स ऑन द क्लॉक। सो ये सब को सर्कैडियन एंट्रेनमेंट, तो ये साइकिल को जो कंट्रोल करता है रिंग मास्टर जैसा, तो ये इसका ट्रेनिंग हो जाता है अपने बॉडी में। छोटा बच्चा जैसे बड़ा होता है, वो ट्रेनिंग, उसको एंट्रेनमेंट बोलते हैं। और सो दिस इंश्योर्स दैट इंटरनल इवेंट्स हैपन एट द राइट टाइम, जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से, रेगुलर इन्वॉल्वमेंट है, डॉन है, डस्क है, उसके हिसाब से कैसे बॉडी में होते रहते हैं, ये और ट्रेनिंग मिल जाता है बॉडी को। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लाइट एंड डार्क साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर आर फ्यू अदर स्मॉल स्टिमुला आल्सो। अभी ये ब्रेस्ट मिल्क का और इसका क्या संबंध है? ये ध्यान में रखना है कि ब्रेस्ट, जैसे ब्लड में मेलाटोनिन रात को ज्यादा रहता है, सीएसएफ में ज्यादा रहता है, वैसे ब्रेस्ट मिल्क में भी ज्यादा रहता है। और वो मेलाटोनिन बच्चे में जाता है प्लेसेंटा के थ्रू, और उसकी सर्कैडियन रिदमिसिटी है कि बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, मैं बोलूंगा आपको, तो उसकी भी सर्कैडियन रिदमिसिटी है, वो कंट्रोल करता है। उससे न्यूरो डेवलपमेंट भी स्टिमुलेट होती है। अगर बच्चा सोएगा नहीं अच्छी तरह से, भले वो वूम में हो या बाहर हो, तो उसका ब्रेन डेवलप नहीं होगा। तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम में भी काम करता है। और कुछ सारे भी मेलाटोनिन के, इट्स लाइक देवदूत, डूइंग मल्टीपल काइंड्स एंजल। सो एक है, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, सो फ्यू खुद भी एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट मेटाबॉलिज्म को भी स्टिमुलेट करता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। अच्छे हीलिंग के लिए नींद बहुत जरूरी है। इम्यून रेगुलेटरी इफेक्ट्स, अगेन मैं ये बोलना भूल गया कि मेलाटोनिन डजंट प्रोड्यूस स्लीप, वो नींद इंड्यूस नहीं करता है। नींद के लिए जरूरी है, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अभी आप मेलाटोनिन की टैबलेट लेके अगर डीजे को जाओ और बोलोगे स्लीप आएगी, मुझे ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, और जो अमेरिका जाएंगे, कहीं जाएंगे यूरोप वगैरह, तो मेलाटोनिन की टैबलेट मिलती है, मैं हमेशा कैरी करता हूँ। 3 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, ओवर द काउंटर, क्योंकि ये कोई केमिकल नहीं है, बॉडी का ही हार्मोन है। अमेरिका जाते ही आप रात को ले लीजिए और आपका साइकिल उल्टा हो जाएगा। आपके यहाँ गेस्ट आएंगे तो भी ये यूज कर सकते हैं। कभी कभी मैंने यूज किया है, बहुत क्रैंकी बच्चों में कोई सब कारण ढूंढा, रात को सोते नहीं है, तो विद प्रॉपर सुपरविजन आई यूज्ड इट occasionally in some children also to set them into proper sleep. Of course some people may not agree with this. Immune regulatory effects भी है, गट हेल्थ, माइक्रोबायोम डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट है। ये भी जाना गया है कि जैसे अपनी उम्र बढ़ती है, वैसे पिनियल ग्लैंड कैल्सिफाई हो जाती है, और कैल्सिफाई हो जाती है, और ये ज्यादा दिखाई देता है पार्किंसोनिज्म और अल्जाइमर्स में। तो आपको आगे यहाँ कहीं लिखा नहीं गया है कि आप लेट उठते हो, सरकारी फॉलो कभी भी खाते हो, कभी भी कुछ करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका कैल्सिफाई, ऐसे नहीं कहना है मेरा, लेकिन सम कोरिलेशन मस्ट बी देयर। दैट्स व्हाई पीपल हु हैव गुड हैबिट्स टेंड टू लिव लॉन्गर, बिकॉज देयर पिनियल ग्लैंड कीप्स ऑन फंक्शनिंग वेल प्रोबेबली। सर्कैडियन रिदम का मेरा भी एक दूसरा एक्सप्लेनेशन है, जो खुद का एक्सप्लेनेशन है। अगर आप 10,000 साल पहले की बात सोचेंगे, जब भी सभी ह्यूमन बींग्स शायद नॉन वेजिटेरियन थे, तो सुबह जल्दी उठ के उन्हें ऐसी जगह पे जाना पड़ता था कि जहाँ जंगल के प्राणी आने वाले हैं, तो उनको मारने के लिए अच्छी जगह ढूंढने के लिए सूरज उगने के पहले उनको अपने केव में से निकल के वहां जाना पड़ता रहता था। जैसे सूरज उगते थी, हर एक प्राणी अपने अपने अलग टाइम पे आता है,
तो वहां पे किल करके उसको लाने का वापस अपने इसके वहां पकाने के बाद उसको खाने का, फिर थोड़ी नींद लेनी है। जैसे हमें नींद आती है दोपहर के टाइम, तो सिएस्टा प्रॉब्ली आल्सो हैज दिस एक्सप्लेनेशन। फिर वापस शाम को निकले, पर शाम का एक्सकर्शन शायद इतना लंबा नहीं होता रहेगा, शॉर्ट होता रहेगा, बिकॉज अंधेरा पड़ता है, देयर नो बैटर टॉर्च और एनीथिंग अदर लाइक मोबाइल लाइट्स एट दैट टाइम। So that must be a short excursion. So and then again come back, have food. Since there is no light, go back to sleep. So that the 10,000, 15,000, 20,000 Stone Age man का cycle अभी भी अपने दिमाग में चल रहा है, and somehow that is good because that is natural. न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। और नॉट जस्ट एडल्ट्स, ओवरऑल इन्फेंट हेल्थ के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग देखेंगे कि प्रेगनेंसी में ये कैसे कंट्रोल होता है। मम्मी के मदर के जो मिलेटोनिन लेवल्स होते हैं 24 वीक से बढ़ने को शुरुआत होती है, और 32 33 वीक भी और जोर से बढ़ते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये 3 गुना ज्यादा हो जाती है नॉन प्रेग्नेंट मदर्स के कंपैरिजन में। एंड जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, बर्थिंग हो जाता है, वैसे ये वापस प्री प्रेगनेंसी लेवल पे आ जाते हैं। मिलेटोनिन आसानी से प्लेसेंटा क्रॉस करता है, बच्चे के सर्कुलेशन में जाता है, और फीटस की सर्कैडियन रिदम डेवलपमेंट के लिए उसको ट्रेनिंग दे देता है। तो फीटस लैक्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस मिलेटोनिन, फीटल लाइफ में मिलेटोनिन नहीं बनता है। अभी कई सारे मैटरनल फैक्टर्स है जिससे मिलेटोनिन कंटेंट अफेक्ट होता है, जो राइज है, डिफरेंस भी बहुत ज्यादा हो जाता है दिन के और रात के मिलेटोनिन का प्रेगनेंसी में। एडवांसिंग मैटरनल एज का कुछ फर्क, डिक्रीजिंग मिलेटोनिन ब्रेस्ट मिल्क, ओबेसिटी विल हैव हायर कोलेस्ट्रॉल मिलेटोनिन लेवल्स। प्रेगनेंसी रिलेटेड मॉर्बिडिटीज है, जैसे प्री एक्लैम्सिया है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, उसमें भी मिलेटोनिन की लेवल कम हो जाती है। अभी कुछ लोग सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम्स की है, मिलेटोनिन इफेक्ट नहीं है, मिलेटोनिन कम है इसके लिए प्रॉब्लम आ जाते हैं। सो इट्स कॉज नॉट द इफेक्ट बट द कॉज। तो इसलिए आगे कुछ एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा कैसे हो गए। डिलीवरी का मोड है वेजाइनल सिजेरियन बर्थ है, इसमें भी इफेक्ट होता है। मैटरनल हेल्थ कंडीशन, मैस्टाइसिस मिलेटोनिन का रिदम डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें जो बर्थिंग प्रोसेस है, लेबर रूम की एनवायरनमेंट है, वहां पे भी हमको लाइट डार्क साइकिल फॉलो करनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बर्थिंग सूट में ब्राइट लाइट चलते रहते हैं, तो मदर का वो दिन का मेलाटोनिन लेवल तो खलास हो गया। तो लेबर रूम या एनआईसीयू के अंडर की एनवायरनमेंट भी जो चाहिए, बाहर अगर दिन है वहां दिन जैसे लाइटिंग हो, अगर नाइट है तो नाइट जैसा लाइटिंग हो। तो ये कोई सोच सकता है, और दे कैन ट्राई एंड इम्प्लीमेंट इट एंड वी कैन सी व्हाट द इफेक्ट्स आर। अब ये ट्रायल्स हो गए कि अगर जीडीएम या प्लेसेंटल इंसफिशियंसी या प्री एक्लैम्सिया, ये अगर कारण है मिलेटोनिन डेफिशिएंसी से होता है, तो दे हैव ट्राइड 10 milligrams ऑफ मिलेटोनिन फ्रॉम 15 to 33 वीक्स, बेटर कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, दैट इज व्हाट दे हैव फाउंड, देयर इज नो इफेक्ट ऑन फीटस। प्री एक्लैम्सिया भी ये ट्रायल हो गई है, एंड रिड्यूस द नीड ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव। सो यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेजेस में से प्रोफेसर असिस्टेंट आए, दे कैन थिंक ऑफ गिविंग दिस टॉपिक फॉर द थीसिस। So let us see what happens in the fetus and neon. फीटर क्लॉक, इसका ट्रेनिंग हो जाता है नॉन फोटिक रिदमिक सिग्नल से। जैसे अभी 30 वीक्स के पहले क्या होता रहेगा, वहां पे तो मिलेटोनिन रही रहता है, तो ये पहले 15 20 वीक्स में तो मदर की रेस्ट एक्टिविटी कैसी है, उसके मदर का टेम्परेचर कैसा है। जैसे दिन में हमारा बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रहता है, रात में कम रहता है, सो दैट में ऑल्सो बी पिक्ड अप बाय द बेबी। यूटेरस की मोबिलिटी है, हार्मोन लेवल्स मदर के हैं, तो दैट विल अफेक्ट द बेबीज क्लॉक डेवलपमेंट। 30 वीक्स डेवलपमेंट के बाद रिथमिक पैटर्न, 30 वीक का बच्चा भी दिखाता है, हार्ट रेट में, रेस्पिरेशन में रेगुलरिटी दिखाता है, वो नॉन फोटिक सिग्नल्स के हिसाब से बताता है। 32 वीक्स का बच्चा, उसका भी कुछ बिहेवियर पैटर्न रहता है, आई मूवमेंट्स का, स्लीप का, एक्टिविटी पीरियड का। उसके बाद मिलेटोनिन जो मदर का है दैट टेक्स ओवर। Now fetus depends on transplacental transfers in the third trimester, and that establishes a neurohormonal connection between the baby and the mother. मदर के लेवल इंक्रीज होने 32 वीक्स के बाद होते हैं, तो ऑब्वियसली जो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाएगी 32 वीक्स के आसपास या 34 के आसपास, वो बच्चे के शरीर में मेलाटोनिन कम रहेगा, उसका ट्रेनिंग कम हो गया है, तो इनका स्लीप पैटर्न डेवलप होने को, इसके लिए बर्थिंग के बर्थ के बाद ज्यादा टाइम लगेगा। सो इन्फेंट्स कैनॉट, और इन्फेंट्स प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते मेलाटोनिन। ये रेगुलरिटी आ जाती है 2 3 महीने के बाद। और ये भी, यहाँ भी एक प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आ जाता है, अभी तक मैं नहीं पूछता था लेकिन अभी पूछने को शुरुआत किया है। अगर कोई मदर मेरे पास आती है, 1 1.5 महीने का बच्चा है, डॉक्टर साहब रात को बहुत रोता है, हम लोग उसको कभी इन्फेंट कोलिक बोलते हैं, कभी और कुछ कारण ढूंढते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कभी कि घर में बच्चा आया, बहुत खुशी है, तो रात को 12 1 बजे तक सब लोग जागते हैं, सब लोग टीवी चालू रखते हैं, सब लाइट चालू रखते हैं,
मदर मोबाइल में देखते रहती है व्हाट्सएप पे के फेसबुक के कितने लाइक्स मिले उसको, तो उसकी मेलाटोनिन लेवल कहाँ बढ़ने वाली है? उसकी मेलाटोनिन लेवल नहीं बढ़ेगी तो बच्चे को कहाँ मिलने वाला है? तो ये बच्चा रोता रहेगा बिकॉज उसका साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो मदर्स को बोलता हूँ मैं अभी स्पेसिफिकली कि 8-9 बजे के बाद थोड़े लाइट्स डिम करो, येलो लाइट करो, और मोबाइल बिल्कुल नहीं देखो, टीवी नहीं देखो, और ऑटोमेटिकली बच्चा भी सो जाएगा। इनफैक्ट हमारे इंडियंस में एक कस्टम थी, छोटे बच्चों को लेके दादी नानी जो पड़वी रहती थी, यानी वाड़ा जो घर रहता था उसका थोड़ा एक्सटर्नल सेक्शन रहता जहाँ पे झूला रहता था, उसके ऊपर लेके दादिया नानी उसको सहलाते रहती थी और बच्चे आसानी से सो जाते थे, बिकॉज दैट ऑसिलेशंस एंड अदर थिंग्स। सो देर आर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ मेलाटोनिन। हेलो। हेलो, किसी का मोबाइल चालू है? आर यू एबल टू हियर मी? स्नेहा फोन इज ओपन। स्नेहा कौन है? फोन बंद कीजिए प्लीज, माइक बंद कीजिए। सो रिदमिसिटी 2-3 महीने के बाद ही हो जाती है, और बाहर का दूध पीने वाला बच्चा है उसमें ये रिदमिसिटी करने को और टाइम लगेगा, प्रीमेचर में और टाइम लगेगा। ये प्रीटर्म में मिलेटोनिन की जैसे मैंने समझा ये प्रॉब्लम है, डेवलप होने को टाइम लगता है मिलेटोनिन, और उसका ट्रेनिंग नहीं हुआ है उसके ब्रेन का, बट बॉडी गॉड इज ग्रेट। ब्रेस्ट मिल्क के प्रीटर्म मिल्क में एट ऑल स्टेजेस ऑफ लैक्टेशन मिलेटोनिन की लेवल ज्यादा रहती है टू टेक केयर ऑफ द क्रोनोबायोटिक डिसरेगुलेशन एंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। ओके, तो सर्कैडियन रिदम वेरिएशन मैच्योरिटी बच्चे की है, स्टेज ऑफ लैक्टेशन है, उसके हिसाब से भी बदली हो जाता है। बर्थ के बाद सडनली माँ के सप्लाई आता है वो बंद हो जाता है, सम रिपीटेशंस, बट आई एम रिपीटिंग इट इज गुड। सो रिदमिक मेलाटोनिन सिक्रेशन बहुत महीने तक नहीं रहता, ये डिस्कस किया हम लोग ने। ये प्रीटर्म में ज्यादा प्रॉब्लम है, ये डिस्कस किया। सो ब्रेस्ट मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सोजिनस मेलाटोनिन के लिए एंड सर्कैडियन एंट्रेनमेंट करने के लिए। अगेन ये सेम बताया हम लोग ने कि रात को मदर की लेवल ज्यादा रहती है, ब्रेस्ट मिल्क में लेवल ज्यादा रहेगी ऑब्वियसली, एंड डे टाइम इज बिलो डिटेक्शन। सो रिदम इज सीन इन ऑल स्टेजेस ऑफ लैक्टेशन। अगेन यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि रात को बहुत ज्यादा लेवल रहती है मेलाटोनिन की, दिन में कम रहती है। मैं एक डिटेल पूरा स्लाइड पढ़ूंगा नहीं, जो मैंने आपको बताया कि प्रीटर्म मिल्क में कोलोस्ट्रम हो, ट्रांजिशनल मिल्क हो, मैच्योर मिल्क हो, तो वहां पे मेलाटोनिन की लेवल ज्यादा रहती है टू हेल्प दैट प्रीमेच्योर बेबी नेचुरली। जैसे प्रीटर्म मिल्क में प्रोटीन ज्यादा रहते हैं, एंड जो वेरिएशन रहता है डे एंड नाइट ये भी प्रीटर्म में ज्यादा रहता है ऑब्वियसली। नाउ ये सिग्निफिकेंस क्या है कि प्रीटर्म मिल्क में ज्यादा मेलाटोनिन है? इससे मदद मिलेगी बच्चे को, किसके लिए? सर्कैडियन रिदम के लिए ही नहीं, स्लीप वेव साइकिल के लिए रहेगी। एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन मिलता है, उसको ज्यादा जरूरत है। न्यूरो डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत है क्योंकि वहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन या स्पीच प्रॉब्लम्स या और कुछ प्रॉब्लम्स होने की संभावना, रिटेनल प्रॉब्लम्स होने की संभावना ज्यादा है। सो मेलाटोनिन इज एक्चुअली हेल्पिंग यू, ब्रेस्ट मिल्क एक्चुअली इज हेल्पिंग यू। सो एक मोर रीजन है आप पेरेंट्स को बोले कि क्यों ब्रेस्ट मिल्क मिलना चाहिए। नाउ ब्रेस्टफेड इन्फेंट्स शो मोर रेगुलर नॉक्टर्नल इंक्रीज। जो ब्रेस्टफीड बच्चे हैं उनमें जो मेटाबोलाइट है मेलाटोनिन का 6 सल्फा टॉक्सी सल्फा सल्फाक्सी मेलाटोनिन, इसकी लेवल उनके यूरिन में ज्यादा रहती है। उनकी दे स्लीप बेटर एट नाइट एज कम्पेयर एंड बेटर स्लीप एफिशिएंसी। फ्रेगमेंटेड स्लीप कम रहती है, कंटिन्यूस सो जाते हैं जल्दी। बाय 1 मंथ दे विल स्लीप एटलीस्ट 4 to 5 hours एट लेंथ। इन्फेंट कोलिक का प्रमाण ज्यादा है, ऑब्वियसली रोना कम हो, जिसको हम लोग इन्फेंट कोलिक लेवल रहे हमें ढूंढना पड़ेगा क्या ये मेलाटोनिन डिफिशियंसी के हिसाब से है। एंड पोटेंशियल रोल मिल्क का बहुत है कि अच्छा स्लीप पैटर्न डेवलप हो जाए। सो ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफेड बच्चे जल्दी ये रिदम अचीव करते हैं अराउंड 6 वीक ऑफ एज। मिक्स फीडिंग है तो इट ऑकर्स एट अराउंड 12 वीक्स ऑफ एज, एंड कंप्लीट बाहर का दूध चालू है तो इसमें और टाइम लगेगा। सो मिलेटोनिन का बहुत महत्व है बच्चे के मूड के लिए, ऑफ कोर्स देन मदर के मूड के लिए, फिर हस्बैंड के मूड के लिए और फैमिली के मूड के लिए। तो ये बात आप जरूर स्ट्रेस कर सकते हो। अभी लाइट एक्सपोजर से क्या फर्क पड़ता है? जैसे मैंने बताया कि लाइट डार्क साइकिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मिलेटोनिन प्रोडक्शन। अभी आर्टिफिशियल लाइट सप्रेस करता है मिलेटोनिन लेवल। शिफ्ट वर्क है, नाइट शिफ्ट कोई कर रहा है तो वापस मिलेटोनिन का रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। एनआईएसयू एनवायरमेंट रात को 2 बजे भी आप ब्राइट लाइट चालू रखो। सो ऑल एनआईएसयू शुड ट्राई फॉर साइकिल लाइटिंग, और रेगुलर डे नाइट रिदम नर्सिंग मदर्स का भी रखो।
ओके, मैं मदर को ही बोलता हूँ थोड़ी रात हो गई तो रात जैसा माहौल रूम में क्रिएट करो। शुरुआत के दिनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। गेस्ट आते ही दिन में माँ जागती है, फिर रात को बच्चा सोने को नहीं देता है कि बच्चा भी डिस्टर्ब हो गया, साइकिल डिस्टर्ब हो गई। इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट, आर्टिफिशियल लाइट से उन्होंने काउस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया एंड दे फाउंड कि जो फुल लाइट चालू रखते हैं तो मेलाटोनिन सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, और वो दिन के सैंपल में भी परसिस्ट होता है। और ब्राइट लाइट अवॉइड करनी चाहिए नाइट फीडिंग के टाइम, पंपिंग के टाइम। ये बहुत आसान है, इसमें ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। यूज डिम और रेड लाइट। इनक्रेज डार्क स्लीपिंग एनवायरनमेंट्स फॉर नर्सिंग मदर्स। तो कोई भी आता है, कोई भी जाता है, लाइट लगाता है, ये सब बंद करो। अभी मिल्क बैंकिंग होता है तो पाश्चराइजेशन के लिए, मिल्क स्टोरेज के लिए क्या इम्प्लीकेशन है? पाश्चराइजेशन से मिलेटिन लेवल कम होती है। होल्डर पाश्चराइजेशन जो क्लासिकली किया जाता है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग से मिलेटोनिन स्टेबल हो रहती है 24 आवर्स के लिए आफ्टर डिफ्रॉस्टिंग। सो इमीडिएट फ्रीजिंग पोस्ट पंपिंग इज रिकमेंडेड। ऑफ कोर्स मिल्क बैंक में पॉसिबल नहीं है, इंडिविजुअल मदर्स में पॉसिबल है। एंड कंसिडरेशन फॉर मिल्क बैंक्स एंड एनएसयू कि वो ऐसा कोई तरीका ढूंढे, ऐसा कोई पाश्चराइजेशन टेक्निक ढूंढे जिससे मिलेटिन लेवल कम ना हो। अभी टाइमिंग ऑफ फूड इनटेक इज इंपॉर्टेंट इन प्योर न्यूट्रिशन। ब्रेस्ट मिल्क कंपोनेंट्स वेरी होते हैं, मिलेटोनिन भी वेरी होता है। तो मिस टाइम फीडिंग से क्रोनो डिस्ट्रप्शन हो सकता है। जो माँ ने दोपहर को 12 बजे दूध निकाला है, वो अगर रात को 12 बजे दे दो तो ये बच्चा शायद रात को सोएगा नहीं। या दिन में आप रात का दूध दे दो तो ये सो नहीं पाएगा। ये प्रीटर्म इन्फेंट के लिए एनएसयू इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ऐसा कोई सोच विचार नहीं हो रहा है, ये डिफिकल्ट भी है बहुत, मैं मानता हूँ। లావణ్య మ్యామ్ ఉన్నారు కదా मरियम, లావణ్య मरियम आपका माइक बंद करो प्लीज। ये इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, बट यस आप दिमाग में रखो तो थोड़ा इसमें रास्ता कुछ निकल सकता है। अभी ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि मदर का जो साइकिल है वो बच्चा फॉलो करेगा। फॉर पंपिंग मदर्स, मेंटेन कंसिस्टेंट पंपिंग शेड्यूल। मिल्क को लेबल करो कौन से है, मैंने निकाला है। ट्राई टू गिव टाइम मैच फीड्स। एजुकेट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग मैटरनल सर्कैडियन रिदम, वो डिस्कस किया हम लोग ने ऑलरेडी। मिनिमाइज लाइट एक्सपेक्ट ड्यूरिंग नाइट, पंपी फीडिंग एंड पंपिंग, वो भी डिस्कस किया। अभी एनएस के लिए क्या है, साइकिल लाइटिंग इज रिकमेंडेड। इट पोटेंशियली जो आपके मॉर्बिडिटी है, मोर्टेलिटी है, उसके ऊपर असर हो सकता है। मे हेल्प रेगुलर melatonin rhythms। फीडिंग प्रैक्टिसेस टाइम मैच्ड एक्सप्रेस मिल्क देने की कोशिश करो। ऑफ कोर्स मिल्क बैंक सैंपल में ये पॉसिबल नहीं है कि ये 10 बजे का मिल्क है सुबह का, ये 5 बजे का मिल्क है। मिल्क बैंक बहुत सारी हो जाएगी, टाइम मिलने को शुरुआत हो जाएगा, स्टाफ मिलेगा, फंड्स मिलेंगे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मिस टाइम फीडिंग ध्यान में रखिए, जहां पॉसिबल है इंडिविजुअल मदर में आप जरूर बोल सकते हो। एक क्रोनोबायोलॉजिकल कंसिडरेशन है, इसमें और रिसर्च होने की जरूरत है। अभी डोनर मिल्क हैंडिंग नाउ, अलग अलग टाइम पे आया मिल्क मिक्स किया जाता है। ऑब्वियसली सर्कैडियन रिदम जो रहता है वो मिल्क में नहीं मिलेगा। कंसिडरेशन ऑफ मिल्क बैंक्स, टाइम बेस्ड मिल्क कलेक्शन एंड लेबलिंग। ये कितना पॉसिबल है मुझे पता नहीं है। एंड प्रोवाइड भी वैसे ही करो, रात को अगर कोई डिमांड आती है तो रात का मिल्क दे दो। इसमें और रिसर्च होना जरूरी है। वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, सेफ्टी, प्रैक्टिकलिटी, प्रिजर्व मिल्क करने की जो प्रॉपर्टीज है, ये सब का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। अभी रिसर्च गैप्स एंड फ्यूचर डायरेक्शंस क्या है? ऑप्टिमल लाइट कंडीशन भी रिसर्च होना है। लॉन्ग टर्म सर्कैडियन मिसमैच मिल्क देते हैं तो उसका बाद में क्या असर होता है डेवलपमेंट के ऊपर, ये भी देखना जरूरी है। इम्पैक्ट ऑफ मैटरनल फैक्टर, जो अलग अलग एज फैक्टर है, ओबेसिटी फैक्टर है, वो कैसे मिलेटोनिन इम्पैक्ट करता है अक्रॉस लैक्टेशन। दूसरी कोई पाश्चराइजेशन मेथड आप ढूंढ सकते हो क्या? और क्लिनिकल ट्रायल्स होने चाहिए कि टाइम मैच मिल्क फीडिंग से क्या फर्क पड़ता है नींद में, ग्रोथ में, और आइडियल लेवल मिलेटोनिन की डेवलपमेंट के लिए क्या हो सकती है। अगेन एप्लीकेशन क्या है, तो सेम बात वापस वापस आ रही है कि एनएसयू लाइटिंग करो, मदर्स को एजुकेट करो, एटलीस्ट जो मोबाइल का मैंने बोला आपको, एट फैमिली मेंबर शुड टेक केयर दैट दे शुड स्लीप वेल। ये भी एक रिसर्च का बात हो सकता है कि जो ट्रेडिशनल डाइट रहता है मदर का, जो ट्रेडिशनल फूड्स है, आर दे हायर इन components which promote good melatonin, good tryptophan, and it also needs B12 and folic acid also, and iron to some extent। तो ये ट्रेडिशनल फूड्स में ऑटोमेटिकली आया है क्या, वो भी देख लीजिए। प्रोटीन मिलेटोनिन सप्लीमेंटेशन की भी बात हो सकती है न्यूबॉर्न्स में। और ये भी एक रिसर्च टॉपिक हो सकता है कि क्या हम लोग मिलेटोनिन, जो बच्चा बहुत इरिटेबल है ना, में सो नहीं रहा है, या उसकी ग्रोथ प्रॉब्लम्स है, तो क्या उसमें मिलेटोनिन से कुछ फायदा होगा। और डोनर मिल्क हैंडलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस में क्या इसका फायदा ले सकते हैं, ये देखना पड़ेगा।
अभी ये क्लिनिकली कितना पॉसिबल है, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, ऑलरेडी एनआईसीयूज आर ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स। उनका रूटीन बहुत हेक्टिक रहता है, 2 या 3 सिस्टर 70-80 बेबीज को हैंडल करती है। तो ये सब प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है ये हमें देखना पड़ेगा, स्टाफ एजुकेशन करना पड़ेगा, पोटेंशियल कॉस्ट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अभी और एक इंटरेस्टिंग बात, देयर इज समथिंग कॉल्ड गट ब्रेन एक्सिस, जैसे ब्रेन स्किन एक्सिस है। ब्रेस्ट मिल्क में जो मेलाटोनिन रहता है वो सही ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया है, उनकी ग्रोथ इंटेस्टाइन में करवाता है। सो इट हैज गॉट ड्यूअल रोल, नॉट जस्ट सर्केडियन रिदम। उससे गट ब्रेन कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो सकता है, गट में गया माइक्रोबायोम स्टिमुलेट किया कि ब्रेन की ग्रोथ बराबर हो। इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन एंड गट हेल्थ के ऊपर, जो हम लोग बोलते हैं कोलिक, बच्चों को पेट में दर्द होता है, क्या वो इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करता है तो कि बच्चा शांत रहे, ग्रोथ अच्छी हो उसकी, गट हेल्थ अच्छी हो। सो इसके क्या एनईसी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है मेलाटोनिन का। सो ये थियोरेटिक एरियाज भी काफी सारे अवेलेबल है, इसका लॉन्ग टर्म न्यूरो डेवलपमेंट में क्या असर होता है, तो ये सभी के ऊपर रिसर्च होना बहुत जरूरी है। सो आपने देखा रहेगा जो मेलाटोनिन को हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं अभी तक, it is a very important part of NICU breast milk. And if we want to achieve a cutting edge IYCA practices, not just for complementary feeding, complementary तो बता दिया मैंने, लोग कभी भी उठते हैं कभी भी खाते हैं, और पेरेंट्स कभी भी उठते हैं कभी भी खाते हैं, तो बच्चों का भी वही हाल हो जाता है। एंड सो हायर प्रीटर्म मिल्क में जो मिलाटिन होता है दैट इज गुड। ये सब बातें हम लोगों ने ऑलरेडी बताई है, रिपीट हो रही है स्लाइड्स में। अभी मैटरनल हेल्थ फैक्टर्स जो है ये ऑलरेडी डिस्कस किए हम लोग ने, मैस्टाइटिस वगैरह। तो यहाँ पे भी मेलाटोनिन का रोल हो सकता है क्या इन्फ्लेमेशन के लिए, ये भी जानना जरूरी है। ऑब्स्टेट्रिशियन कैन कैरी आउट ट्रायल इन प्री एक्लैम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज, क्या फायदा होता है ये देखने के लिए। मेरा बच्चों का स्ट्रेस प्रीटर्म बेबीज का कम करे एनआईसीयू में, ये टॉपिक बहुत बार डिस्कस हो चुका है। आज इंटरनेशनल केएमसी डे है, तो ये भी रिसर्च कर सकते हैं कि कई केएमसी देने से मेलाटोनिन लेवल्स में क्या फर्क पड़ता है, और ये क्या मेलाटोनिन के स्ट्रेस स्ट्रेस काउंटर कैसे करता है। अभी कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हम लोग ने डिस्कस किए थे। क्रोनो न्यूट्रिशन आपको मालूम है, क्रोनो एंट्रेनमेंट पता है, जाइट गेबर्स क्या है पता है, एंड क्रोनोबायोटिक डिसरेगुलेशन क्या है ये पता है। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आई वाज क्वाइट फास्ट। तो डिफिकल्टीज कुछ हो तो आप जरूर पूछ सकते हो। सो फ्रॉम बीपीएनआई महाराष्ट्र, नाउ एज अ होस्ट आई एम टेलिंग यू, आई एम थैंकिंग यू। और एक रेफरेंस जो मैंने बहुत बड़ा यूज किया, ये रेफरेंस है 2024 का, बहुत अच्छा रेफरेंस है, मैं ये शेयर करूंगा सभी ग्रुप्स के ऊपर। ये मेरा प्रेजेंटेशन का पीडीएफ भी आपको शेयर करके दे दूंगा, आप जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ भूलिए मत क्रेडिट देने को बीपीएनआई महाराष्ट्र को और मुझे, तो दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। आप प्रेजेंटेशन यस करो, किसी का परमिशन तो लेनी चाहिए, बट एज फार आवर प्रेजेंटेशन आर कंसर्न यू कैन यूज देम, बट गिव अप्रोप्रिएट क्रेडिट्स। And thank you very much. We open the conversation for any question answer session. Thank you so much. So before, thank you, Prashant. Before we take any questions, I would really like to thank you for taking a really amazing lecture, which is actually an eye-opener as to how melatonin has such an important role and how our younger generation is working away to glory, but keeping awake late nights, seeing movies, chatting on social medias, but it is really affecting the next generation. Thank you very much, and the house is open for questions. Please raise your hand or unmute and raise your hands, and we would like to answer to any questions. Can I ask Sushma Yes, madam? madam. बोलिए। Yeah, I mean, that's very You all brilliant. don't need to take my permission. Just ask, please. And it's really something new knowledge. And you said the melatonin levels increase in the night. Now, this breastfeeding mothers, always the question, yeah, how she will get enough sleep in the night, because she has to get up very frequently to feed the baby. And they think they don't get the enough sleep. So how this equation of this melatonin increase and the maternal sleep, how you correlate? मैडम ऐसा है कि वो 9 बजे के बाद डिम लाइट में बैठेगी थोड़ा,
बातें कम करेगी और बच्चे से ज्यादा बातें करेगी, इंटरेक्ट होगी, और खुद का मोबाइल बंद रखेगी, तो हो सकता है उसके मेलेटोनिन लेवल अच्छे बढ़ जाए, और वो ब्रेस्ट मिल्क में ज्यादा मेलेटोनिन आ जावे, तो जो एक एक घंटे से बच्चा उठता था वो अभी दो दो तीन तीन घंटे से उठने को शुरुआत करे। ऑफ कोर्स जो मदर ये सोचती है कि पहले दिन से ही बच्चा रात भर सो जाएगा और उसको भी आराम मिलेगा, दैट इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। सो डेफिनेटली आपके एंटीनल सेशन आप जब भी लेते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, आप अगर ये एंटीनल सेशन में बोलिए कि आपको शांति से नाइट को सोना है, तो आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। मेलेटोनिन एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, इट डजंट इंड्यूस स्लीप। If you are dancing to glory and at the same time you want to saying mobile, I want to go to sleep, melatonin is not going to help you. It creates a stage, जो शांत स्टेज रहती है, आपका अलर्टनेस कम करती है बाद में, और बाद में नींद की तरफ ऑटोमेटिकली पुश हो जाते हो। There are something called MT1 and MT2 receptors, melatonin receptor 1 and 2. So they are present in suprachiasmatic nucleus. तो उनकी लेवल्स भी बढ़ती रहेगी ये सब करने के बाद। या सो एक्सपेक्टेशन क्या है मदर की? मदर्स विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशन हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन मदर्स की एक्सपेक्टेशन एक लेवल पे लाके ये करो तो शायद आपको फायदा होगा। और रात को फीडिंग भी करना जरूरी है, वो भी लाइंग डाउन पोजीशन में, ताकि वो थके नहीं, ताकि वो रात का मेलेटोनिन जो मदर में आया है वो बच्चे में पहुंच जाए, बच्चा भी सो जाए। या सो बेबी माइट स्टार्ट स्लीपिंग वेल समवेयर बियॉन्ड दैट पीक ऑफ मेलेटोनिन। सो 3-4 PM को रात को सो जाएगा, एंड देन दे ऑफ कोर्स स्लीप फॉर 5 hours till morning. Sheetal has raised a hand. So Sheetal, and then after that, Rupal. So Sheetal, please Yes, unmute and ask your question. yes, ma'am. Thank you so much. Good afternoon, Mm. everyone. It was an excellent presentation. Recently, I read in the Lal HA League article about night feedings, and in that they had mentioned that the breast milk has, I mean, the content of tryptophan is more in the breast milk at night. So, is it like for the first 2-3 months, the baby is not able to produce melatonin, but is it the tryptophan or melatonin is high at the night time? Melatonin is high, tryptophan levels I don't know, I have not correlated that. बट अगर मदर का ट्रिप्टोफैन बेस्ड अगर फूड कोई मदर को दे जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी मेलेटोनिन लेवल बढ़ने वाली है। इनफैक्ट हम लोग में पूरा इंडिया में ऐसे बोला जाता था कि आप सात्विक खाओ तो आपका दिमाग भी सात्विक सोचेगा, और आप तामसी खाओ तो आपका दिमाग भी तामसी सोचेगा। तो पहले मैं ये बिलीव नहीं करता था, लेकिन कहीं पे मैंने पढ़ा बाद में कि जो प्रोटीन्स आप खाते हो, तो उसमें जो Mhm. अमाइनो एसिड ज्यादा प्रिडोमिनेंट है, तो उससे आपके न्यूरोट्रांसमीटर लेवल अफेक्ट हो जाती है। ऑल न्यूरोट्रांसमीटर आर बेसिकली मॉडिफिकेशंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, especially B6 vitamin is very plays a very important role. So all they are all amines. Yeah. So वो प्रोटीन्स जो है वो बढ़ते हैं, तो जरूर आपके साइक के ऊपर, आपके सोचने के ऊपर जरूर उसका इफेक्ट हो जाता है। सो Okay, ट्रिप्टोफैन Excellent. आप पढ़ो और नेक्स्ट टाइम बोलिए मेरे को कि क्या yes, ट्रिप्टोफैन लेवल्स में होता है और कौन से फूड्स में ट्रिप्टोफैन ज्यादा है। आई थिंक नॉन वेज yes. फूड्स हैव मोर ट्रिप्टोफैन, सो वील हैव टू फाइंड आउट सम वेजिटेरियन Mhm. फूड्स आल्सो। Next is Okay, Rupal. thank you. Please unmute. Thank you, Sheetal, and thank you, sir. Rupal. Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. Sir, I have one doubt. I am asking for specifically for the exclusive pumping moms. So, sir, जैसे हम बोलते हैं कि pumping mom है, so it should be first in, first out when we are storing the breast milk. तो as per this melatonin content as we are saying today, तो इसका मतलब ये हुआ सर, जैसे आपने भी बताया कि it should be time match expression. So it should be first in, first out or last in, first out then. Both are true and both are false. See, practically, if you try to follow one particular thing, you will not succeed. You will have to throw away a lot of milk. Yeah, but Okay. पहला करो तो टाइम बेस नहीं मिलेगा, तो थोड़ा हाँ. बैलेंसिंग करना जरूरी है ये स्टेटमेंट्स में। सो प्रैक्टिकली Okay, sir. जितना पॉसिबल हो Yeah. उतना उतना कीजिए, राइट? That, तो and that is why, can I add here? That या is why ऑफ the कोर्स, importance of writing the time on at least अपने घर पे जो collection कर रहे हैं, they can हाँ. manage. But in human milk banks, it is not possible. One, the human milk banks usually work only during the day. There are very few who are working round the clock. So time is written even in the human milk banks. But जो अपने घर पे है, I do हाँ. remember that for my daughter-in-law, we had done that way. जो night milk था, we used to give. But जो day milk था, we used to do first in, first out. Okay? Okay. And ऐसा so, है कि ma'am, जो for बच्चे the को
रूपल एक मिनट, जो बच्चे को बहुत थोड़ा बाहर का दूध जा रहा है, सप्लीमेंट जा रहे हैं की जरूरत पड़ रही है, जो मिल्क बैंक मिल्क यूज हो रहा है, तो उसमें आप कोई भी मिल्क दो, फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मदर इज टेकिंग केयर ऑफ प्रिडोमिनेंट ब्रेस्ट फीडिंग। लेकिन जो बच्चे को ओके बिल्कुल मदर का दूध नहीं मिल रहा है, उसमें थोड़ा बैलेंसिंग करो, चलो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया, दैट माइट हेल्प दैट बेबी। True. ओके अंडरस्टूड सर, थैंक यू सो मच सर। Pankuri, Pankuri Multani, Pankuri Multani. Please Yeah, unmute. yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So thank you, sir. Thank you so much for this insightful session. Actually, I always promote mothers to, stay away from mobile phones and all. And I always highlight on the hormone cholecystokinin also for, helping the child to sleep well. I was reading that cholecystokinin also helps the mother to stay relaxed and all. And I also read that, the intake of good amount of fats and proteins in the diet of the mother will definitely help to manage cholecystokinin as well as melatonin. So I think we should encourage them to have a good diet which is rich in healthy fats and protein. इसके ऊपर से दो चीज मैं आपको बोलूंगा कि रात को हाँ, 2 बजे के आसपास मेलाटोनिन का पीक और सुबह छह हम्म, बजे के आसपास स्टीरॉइड्स का पीक। ये जो हम्म, ऑर्केस्ट्रा है ना, ये ऑर्केस्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया गया है, तो ये ऑर्केस्ट्रा मेंटेन रहेगा तो आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी और आपकी वाइटैलिटी भी अच्छी रहेगी। ये जो आप कोलिसिस्टिन काइनिन की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोलिसिस्टोकाइनिन, there are 16 gut hormones which are secreted हम्म, through vagus nerve when the mother gives skin to skin touch and mother the baby suckles. That pressure on the oral wow, mucosa stimulates the vagal nucleus, and that vagal nucleus stimulates the, vagus supplies most of the GI tract. So it's known to produce 16 hormones which not only help digestion but also assimilation of food. So it is that wow, if you read the Brescroll document, there we have highlighted this particular how the oxytocin, which there are two types of oxytocin, one which is secreted by pituitary in the blood, and one oxytocin which is used as a neurotransmitter, and both cannot cross the blood-brain barriers on the other side. So that oxytocin, which works as a neurotransmitter, that stimulates the vagal nucleus, and that causes the impulses to the gut, which increases 16 hormones, including cholecystokinin. Yeah, in both mother and babies, not just the baby, both mother and the baby. correct. Therefore, pregnant mothers have more hunger and more capacity to eat and digest more food. Okay. Okay. Thank you, I'll sir. also Thank you so much. thank you, Pankuri. Why I'm hurrying Thank up you, ma'am. because there are many Not an questions. issue, ma'am. Thank So you, ma'am. one question I'll take from the chat is generally mother Dhara Patel has asked, generally mothers complaints are baby sleeps well in the day but constant awake in night. In that, what should we have to explain to the mother? पहले वो मदर का डेली रूटीन क्या है वो फाइंड आउट करो, जहाँ पे चेंजेस आप सजेस्ट कर सकते सजेस्ट करो। या बट एट द Yes. सेम टाइम सम बेबीज में बहुत शरारती रहते हैं, जो चाहते वो नहीं करते, तो उसमें मैं उनको दूसरा एक बोलता हूँ कि एक दूसरा जाइड गिवर मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। उनको बोलता हूँ कि अभी यहाँ कश्मीर की ठंडी नहीं है, तो थोड़ा आप रात को उसको स्नान कराइए और सुबह से स्पंजिंग कीजिए, एंड दैट हेल्प। दूसरा एक है कि मिलेटोनिन का साइकिल सेट करने के लाइट एक्सपोजर, व्हाइट लाइट एक्सपोजर बहुत जरूरी है, कि जहाँ पे वो डिप्रेस हो जाए और डाकते से आए तो राइज हो जाए। तो काफी सारे लोग 40 दिन तक बच्चे को बाहर नहीं निकालते, तो उनको थोड़ा थोड़ा सुबह शाम जब भी लाइट रहता है लेकिन धूप नहीं रहती है, सुबह से 6:37, इवनिंग ऑल्सो सेम टाइम, टेक देम आउट। If it is little cold outside, give them proper temperature protection. Let the child experience that white light. Of course, not getting the sun to shine into the eyes directly, which can be deleterious for the retina. So that exposure to the white light outside is important. Rhythmic oscillation of a jhula, that also is very important. So that bath trick works very well because some of morning is related to bath and evening is related to maybe short cleaning or something. So that works as a Zeitgeber for the melatonin secretion, and that works in most of the cases. These two particular games. एक और क्वेश्चन है, डॉक्टर स्वाति हजारे ने पूछा है, सर इट वाज अ वेरी नाइस सेशन, ओनली वन क्वेश्चन, इफ बेबी इज completely on formula, for these babies when will melatonin start to generate on their own? As I said, exclusive breastfeed baby is 6 weeks, mixed fed baby is something like 12 weeks, so 3 months, and completely top fed babies something more than that. To be on funnier side, they should try, of course, powder milk is not given so out of fun. They should try to look for a formula which is melatonin rich, which have been produced from cows, where they have taken care that night times no lights were on. And so the cows have produced good melatonin and they are good melatonin in that. Of course, that's a fun part. Actually, none Yeah. of the formulas have the melatonin.
मैं None of मजाक the कर, formulas you have the. can't help these babies. There you have to give, depend on more height givers, as I said, as home environment, keeping day and light and giving good light exposure and good Okay. skin to skin contact. ब्रेस्ट मिल्क नहीं कर सकती है, फीडिंग स्किन टू स्किन कांटेक्ट तो दे सकती है। इसलिए मैं बोल रहा था कि केएमसी स्किन कांटेक्ट और मेलाटोनिन का क्या संबंध है, ये ढूंढने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर अलका ने क्वेश्चन पूछा, अलका फर्नांडिस। Dr. Alka, please unmute. Otherwise, yeah, please. I'm here, ma'am. Yeah. So my question was, when the mothers have to feed in the night, should they put on, because see, many of them are still struggling with proper latch and all. So at that time, should they put on bright light while trying to adjust how the latching is happening? And आपने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आई अंडरस्टूड। आपने बहुत अच्छा, एम आई ऑडिबल? Yes, एम आई ऑडिबल? yes, yes, yes. ओके, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो ये ब्रेस्ट कॉल के टाइम में हाईलाइट हुआ था क्वेश्चन, ये बच्चे का फीडिंग लेने का ज्ञान ये लैक्टेशन कंसल्टेंट और मदर से भी ज्यादा रहता है। हम लोग अंधेरे में खाना नहीं खा सकते, पूरे अंधेरे में लाइट लगता है, इन बच्चे को कोई लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, because it depends on smell and other stimuli to find nipple and the breast, and it has got very powerful reflexes, so baby doesn't need light. Maybe a very dim light for mother to be comfortable. Yes, they are having some dim lighting and they are seeing what baby is doing, but babies don't need it because babies have anyway have poor vision. सो बेबी के लिए जरूरी नहीं है लाइट लगाना, मदर के कंफर्ट के लिए थोड़ा जीरो लाइट या ऐसा लगा सकते हैं। एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड नॉट पुटिंग ऑन द ब्राइट लाइट, एब्सोल्युटली नो। एंड नो बेबी विल स्मॉल गेट स्मॉदर्ड और समथिंग। बच्चा बहुत होशियार रहता है जो अपने आप विद सच लिमिटेड एबिलिटीज ब्रेस्ट कॉल कर सकता है। वो अगर उसका नाक दब रहा है थोड़ी बोलेगा मम्मी तुम बहुत अच्छी है नाक दबाओ, वो तो छोड़ देगा ब्रेस्ट। ओके, सो ब्राइट लाइट बिल्कुल रिकमेंड मत कीजिए, जस्ट लाइट सफिशिएंट इनफ फॉर मदर टू सी द आउटलाइन ऑफ द बेबी एंड हरसेल्फ, दैट्स इट। Then there's a question देखिए by. इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन अश्वत्थामा ने पूछा, जो द्रोणाचार्य का शिष्य था, बेटा था, कि आप हमेशा अर्जुन को मेरे से एक स्टेप ज्यादा आगे क्यों सिखाते हो। तो द्रोणाचार्य ने एक ट्रिक किया, बहुत अंधेरा किया, सबके सामने फूड के थालियां रखी और खाने की थालियां, वो क्या भी खाओ। एक अकेला अर्जुन था जो अंधेरे में भी अपना खाना पूरा कर सका, बाकी कोई भी ठीक तरह से पूरा नहीं कर सका। और अश्वत्थामा समझ गया कि क्यों मेरे फादर ने अर्जुन को ज्यादा सिखाया है, क्योंकि उसकी सेंसरी एबिलिटीज बहुत ज्यादा है, जो अंधेरे में भी सिर्फ आवाज के ऊपर लक्ष्य भेद कर सकता है, जो तुम आप नहीं कर पाओगे। Okay, next, thank you, Prashant, for always bringing mythology into all our lectures. Very good. You're really well read in it. There's a question, hand has been Thank you, raised by Mansi. Mansi Shah. Yes, Mansi, please unmute. While she's unmuting, maybe I should ask from the chat. Jyoti Shinde has just commented that eggs, salmon, fish, chicken is rich in tryptophan, and in vegetarian, sweet potato and soya bean oats are the options. Then Manisha Gogri said that prolactin surges during night feeds also help in sleeping. So at this point, I also wanted to say it's not just melatonin. Of course, that's the major hormone, but the other hormones also directly or indirectly help in sleep. They help that the mother is not stressed and everything. So everything does help out. It might also be Then interesting to find out connection between melatonin and prolactin. They are just behind, very good neighbors. So what stimulates what? Is it prolactin which is stimulating the melatonin, or is it melatonin stimulating, or both are shaking hands simultaneously? yes. Important takeaway by Rebecca given is to create a melatonin environment for the baby. And this we should add during the antenatal sessions. Yes. Mahima Pandit said, rooming in, lying down while feeding, screen-free room, dim lights, noise-free rooms. Doing this for the first 3 months will smoothen the journey. Not Any during the other day, no, during the questions? white light has to be there for the baby Yeah, and mother no, to that's, understand ये she चीज has है। said, okay, baby sleeps well in the day and constant awake and itinerary. No, that I have asked already. Yeah. एक और एक Mansi? ट्रेडिशनल कस्टम है अपनी,
और एक ट्रेडिशनल Yes. कस्टम है जिसमें नए मदर को बिना विंडो के रूम में रखा जाता था अंधेरे में फॉर फर्स्ट 10 to 15 days where she was given food directly over there. So I don't know what importance it has. Does it mean that darkness will promote more melatonin, more flow, more sensory abilities? But yes, that did happen till 100 years back. I think that started because, they believe that the mother is impure because of the lochia discharge in the first 10 days. And there is a peculiar smell in some of them. I think that was the reason. But they didn't realize that they're missing out on That some. reason was for the common people, but the sages Yeah. who made it knew that it prevented infection and it would have some more benefits also. My Yes, yes. grandmother had explained this reason to me, sir, that Yes. earlier Who days is before first. speaking? Please identify, please. We can't see Sorry, who ma'am. is This speaking. is Dr. Mahima. Mahima Pandit. Yeah, Mahima. Okay. So, yeah, my grandmother-in-law explained this reason to me that in first 40 days, to maintain good emotional health of the mother, they used to keep her away from all other distractions of normal societal life so that she can focus better with the baby and the newborn life and she'll not be distracted. That could have led to postpartum depression and other things. That's what her opinion was. Correct. I'm not sure on that because I think these days the modern moms always want the husbands also to support. Now, if you're going to keep them 40 days apart, I think half the things the husbands are also doing. I think, I won't encourage that personally. ये तो ऐसे करेंगे हस्बैंड तो शादी के टाइम में वो कंडीशन रखेगी, मैं 40 दिन नहीं रहने वाली हूँ डार्क रूम में. Okay, Mansi, are you back? Because I saw Yes, that you ma'am. have unmuted. Yes, Yes, ma'am. please ask. I think Ma that may be the last question. Yes, please. Yeah. Thank you, sir, for this insightful session. Sir, I just wanted to ask you, like after 6 months, when we mother starts working, and that's when the cycle of the being a mother's absence in the daytime and causing a night frequent feeding and waking up and that time. So what do you suggest? How can we reduce, I mean, how can we help that? And second question is, sir, in our Ayurveda, just what we say, just a maid. I don't know what it is called. I mean, I just forgot the English name of nutmeg. Yeah, So can nutmeg. can we just little scrape and put it in express milk of mother for the working woman, so that her night sleep is there more? How, so what is your take? It was just a random suggestion No, came no, in no, mind. no question of using nutmeg because it contains a lot of opiates. It causes constipation. In fact, it will be interesting to tell you. And Malik Madam is like, and Keshavlu sir, Raghunath sir are all witness to it. In Mumbai slums, till about 30, 40 years back, we used to get children who were deeply sedated, children of working mothers, especially Yes. servants who used to go out, and they were all opium poisonings because mother used to give opium in the morning before she went for work. And those we have seen a lot of opium toxicity that Shukmana must have seen more, Yeah. and they have somehow stopped. So no sedatives to the baby, not even melatonin. Yeah, so Yes. melatonin of course is much safer in the controlled way under supervision, maybe, but definitely not nutmeg. Yeah, nutmeg causes constipation also. So please don't think of any such ideas. They are not Okay. good ideas. For a working mother, it is of course a great balancing to balance work as well as to balance, breastfeeding. But there's something called reverse feeding. If mother feeds more at night, of course, in lying down position, baby's demands during the day go down. So baby gets during the day, baby eats, and the night the baby Keeps us. takes the breast milk. So it's a balancing act. You can't tell the mother that आप ये बाजू भी करो वो, ऐसा दोनों होने वाला नहीं है. अगर दिन में बच्चे के, बिकॉज हर एक चीज में एक एक्सट्रीम एंड नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात को फीडिंग ही नहीं करने का बिकॉज मदर इज वर्किंग, या रात भर बैठ के फीडिंग करने का. शी कैन यूज एक्सप्रेस मिल्क विच हैज शी हैज स्टोर्ड इन द ऑफिस, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग लाइक वर्किंग फ्रॉम होम एंड अदर थिंग which options we give to the mother. So those options also should be tried. Another in the chat, Thank you. Dr. Manjari. Yeah, thank you, dear. Sorry. Dr. Manjari Deshpande has commented that the research shows that red light therapy of 670 millimeters in wavelength is helpful to increase the melatonin levels. Does it? No, does it? It is helpful for babies also to help them to sleep well.
Yeah, I mean, if red light is of course is Yeah, better red than light yellow is light, known. and yellow light is better than white light. Yeah, but red light doesn't create a very good, environment around. But yes, we can try. But to take a balance, I think something like dim yellow lights are better, because bright, yeah, white Yeah. light the tube lights give, all the trails, white light LCDs give, they are definitely not good. चावी नाही घेतली. And one more thing, that quite often we have a lighting which the light directly hits the ground. What the light experts say, that light should get reflected to the ground and a room from the ceiling, yeah, or from the walls. So there are a lot of people who put lights who are either pointed towards the ceiling or towards the wall, and what the room gets is a reflected light, so they can see very well. At the same time, that light doesn't hit the Not eyes. sharp. Yeah. Yeah. Okay, with that, I think we are over. Last, any question before we go? I would request Dr. Sangeeta Jadhav to give in a vote of thanks, and thank you everyone for a patient hearing. Sangeeta? Before we close off, the next session will be 14 days from now. Today it is 15th, so 29th of Thursday, 29th of May. And for people to remember, we'll keep the sessions exactly 14 days apart. That is one. Number two, if there is a bank holiday or other thing on that session will be cancelled, and we go to the next session after that. So we have a session at least one session per month. Third thing, that people have to voluntarily come forward to present. If people don't participate and they keep on waiting for us to get guest speakers or to create a topic, this series is not likely to last beyond 1 year. Let me tell you very frankly. We want your cooperation. This is case discussion. This is clinic. This is Yeah. not orations lecture, orations program. So please come forward. Please think of something new. Please something, whether it is programmatic approach to a particular issue, or whether it is a knowledge-based question, didactic question, or some interesting thing which has not been witnessed, or an interesting case, of course. So I would recommend all of you to do that. Otherwise, this program will not sustain, and we will not be responsible for that. Okay, so Sangeeta? Yes, yes, madam. Thank you so much. And it was excellent session as usual. To hear from Dr. Prashant Ganguly is always pleasant, because we get to know so many things from him. And with this topic, actually it was mesmerizing, because it's just simple things, and we have never thought of timings of breast milk expression will matter so much for the baby's development and all. And mythological stories as usual, very great. So as sir requested, suggested, I will also, from my front also, I will request everyone present here, those who are interested in presenting, sharing their knowledge with the audience, are welcomed. And second thing, in the beginning, Dr. Prashant sir told that we have to implement, because we are gathering so much knowledge, but if we do not implement, the knowledge which is not used becomes garbage. So use that knowledge, share that knowledge, and let the people around us also skills up their skills. So thank you very much. Thank you, Before you end the program, UNICEF. Sangeeta, I wanted to have one feedback, that Yeah. if I had presented this completely in English, would it have led to better understanding, or still Hindi is fine, you feel? Because that is one reservation which is expressed sometimes now from the other side. I think a little bit of Hindi, that's what I feel personally, and I saw the comment also, even Yes. in today's talk, that thank you for speaking, a part of it in Hindi. So I think our speakers would be conveyed that way. Okay, fine. And if we have more of a mother support group, then it should be in Hindi. Sir, we are having a It's very a mixed mix. crowd. It's a mixed crowd. Yeah. And we are having really a mixed crowd. No, what I wanted to ask really is that, speaking Hindi, did it alter or did it affect the content of information, or it did not affect the content of information? Speaking in Hindi in between will not affect the content. Na? Okay. And another thing I felt was that those who want only in English, the slides were in English.
So whatever was being said was there on the screen in English. So that should partially take care of, the I understanding don't part. think anybody says that speak only in English. I don't think anyone is saying that, uh, we are Indians and everybody needs to know Hindi. So that's Okay. it. Okay. Fine. Yeah. So do we call it a day? Yes. Okay. Yes. Bye-bye. See you all. Sir, Thank you, before everybody. that, thank you, UNICEF, for Yes, of course. UNICEF. collaboration with BPNI Maharashtra and actually making your platform available to us, so that this time actually we could accommodate more people. Thank you, And everyone. also, UNICEF would Yes. be giving us some good speakers from the national or Yes. international scene. I'm sure they'll do that. They have got good amount of local faculty also, with some which are part of BPNI, some are not part of BPNI Maharashtra. And of course, some dignitaries which we normally don't have contact with, but they can keep a contact and bring over here on this platform. Yeah. Yeah, so So thank you. thank you all. Thank you, Thank everybody. you. And thank you, Nutrition Bureau and And Shalini and I forget the name of sir. Shalini, त्या सरांचं नाव काय होतं? बागल सर ना? रवींद्र बागल सर, डॉक्टर त्यांचे पण आम्ही आभार मानतो की त्यांनी खास मेहनत करून हे सेशन फॅसिलिटेट केलं आणि फूड न्यूट्रिशन ब्युरो आणि शालिनीचे. थँक्यू. आणि आजचा अटेंडन्स पण 50% वाढला, 150 होते ना. येस. सो दॅट इज गुड. थँक्यू मध्ये 155 झालं होतं मध्ये. ओके. बाय बाय. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thank you.